So in ethics, what do you mean by ethics? Ethics is the principle of choosing between right and wrong. Okay. There is a quote that is the unexamined life is not worth living. What do you mean by that? It means that if you are not exploring your life, you are not able to understand what your life is trying to say you, your way of understanding the life, then it is not worth living. Okay. So you must able to understand each and every aspect of your life कि आपकी लाइफ में आपको क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, आपको वो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए उस चीज़ की. ठीक है. जैसे कि अगर हम देखें इसमें, तो इस क्यों अगर हम एग्जामिन करते हैं अपनी लाइफ को, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर आर पॉजिटिव्स. इफ यू आर डूइंग एनी वर्क एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट आउटपुट, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि यार ये गलती हुई थी मेरे से, ये कमियां थी. ठीक है. तो कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से क्या बेनिफिट होता है जब आप करते हो कि आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हो. जैसे जब आफ्टर कलिंगा वॉर, ओके, देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन अशोक. यू नो अबाउट इट? कि पहले क्या था कि ही वॉज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? फाइटिंग, कॉन्करिंग. बट आफ्टर दैट ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा. धम्मा मीन्स हार्मोनियस, harmony among different religion, whether it is Buddhism, Jainism, okay, Hinduism. So that was the thing. Similarly, progress in life, if you able to understand, introspect yourself, you will progress in life. Okay, give me 1 minute just. Yes. So progress in life. The example is Valmiki. We all know that he is the author of Ramayana. He was earlier a dacoit. What do you mean a dacoit? Dacoit means daku. But now he is a saint. He converted, he transformed into a saint. And because of the self introspection, he did the self introspection what he was doing. Because of that, he became a saint and he wrote a book Ramayana. Then we have an evolution of human beings. Like we question each and every aspect of life. Like Galileo, he questioned the church, the authority of church, ki what the church used to say. Okay. And the discovery of truth. So he challenged the established beliefs, whether it is about the earth is like round or any questioning. So what do you get from rationality? जब आप rational होते हो तो आपको questioning होती है. ठीक है ना. जैसे राजा राम मोहन रॉय, he questioned what? सती सिस्टम. ओके. जो सती सिस्टम होता था उसे किसने क्वेश्चन किया? राजा राम मोहन रॉय ने. So we can say that the unexamined life is not worth living. Okay, so how to examine the life? Self introspection, communication with the conscience. Be objective. Objective means you must be clear about your aims, what you want to do in your life. You are getting my point, what is I am trying to say. And the communicate with the conscience means that conscience is inner self of knowing what is right and wrong. So we get to that part, okay, with conscience. Then we have second thing, that is when emotions control the administrator. Like you have seen कि कई बार आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं, आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं. तो उसमें किसका वो होता है? रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का. इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग one's own emotion and understanding the others people emotion, and to guide those emotion to have a better understanding, I have a harmony relationship in the society.
कि आप अपने इमोशंस भी समझ पा रहे हैं, दूसरे के इमोशंस भी आप समझ पा रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई गुस्सा हो रहा है, तो आपको उस टाइम पे कैसे उस चीज़ को पैसिफाई करना है, चीज़ों को शांत करना है। ये नहीं कि आप भी गुस्सा हो जाओ वो सामने, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा एक क्या होगी, टेंशन क्रिएट होगी, स्ट्रेस क्रिएट होगा उससे। तो उस पर हमें फोकस करना है। तो एंगर, जैसे आपका एंगर का क्या है, शॉर्ट टर्म अप्रोच है, ठीक है। वाई एंगर इज़ बैड, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपने किसी को फाइट पे, ठीक है ना, स्लैप कर दिया, ठीक है ना, तो शॉर्ट टर्म है, लेकिन उससे क्या होगा, जो रिलेशनशिप है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। किल्स रेशनैलिटी, उस टाइम पे जब इमोशनल आप ज़्यादा हो जाते हो, रेशनल वे में आप सोच नहीं पाते। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें जो डीएम था, ही स्लैप्ड अ सिटीजन, एक डीएम ने एक सिटीजन को मार दिया जस्ट बिकॉज ऑफ अ वेरी स्मॉल थिंग, इट बिकम अ नेशनल लेवल इशू। फिर ईगो बूस्टिंग, वाई पीपल डू इट, फॉर जस्ट बूस्टिंग देयर ईगो, उनके अंदर ईगो होती है। जैसे आप इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि रेज, ठीक है ना, ड्यूरिंग कार, लाइक आपने देखा होगा कि अगर दो गाड़ियां थोड़ी सी आपस में टकरा जाती हैं हल्की सी पीछे, तो कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ना, थोड़ा सा। कार फाइटिंग एक बहुत वो है, ठीक है। देन ईगो बूस्टिंग, लाइक वी नो अबाउट द पुलिस कस्टोडियल डेथ्स, वी नो कस्टोडियल डेथ्स इन पुलिस, ठीक है ना, इन पुलिस स्टेशंस, कि काफ़ी लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो पुलिस स्टेशंस में कस्टडी में जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, उस टाइम पे गुस्से में होते हैं पुलिस वाले। तो कस्टोडियल डेथ्स, फेक एनकाउंटर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका एंगर का। ये सब क्यों हो रहा है, एंगर के कारण हो रहा है। जैसे आपने गंगा जल मूवी देखी है, उसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि जो अजय देवगन है, ठीक है, ही इज़ अ रेशनल पर्सन, उसे कभी गुस्सा इतना नहीं आएगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं, आप देखो कि वो क्या कर रहे हैं, कि if there is a rape in the society, the mob is what he is doing, they are just क्रिमिनल को पकड़ा और उसकी आंखें फोड़ दी। वो सब चीज़ें देखी आपने जो हो रहा है, तो वो क्या है, एंगर के कारण है। मॉब लिंचिंग, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मॉब लिंचिंग, मैंने बताया था जो बीफ का वगैरह का वो चलता है, या फिर तो आपका मॉब लिंचिंग इज ऑल्सो। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा, योगा से, ठीक है, योगा करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो हमने पहले पढ़ा, और कंट्रोल करना है नेगेटिव इमोशंस को, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेस कैसे, कि जब कोविड टाइम पे क्या हुआ, जो कटनी एडमिनिस्ट्रेशन था, ही सेटअप अ 200 बेड फैसिलिटी सेटअप ड्यूरिंग क्राइसिस। जब कोविड हुआ तो एकदम से स्ट्रेस हो गया हॉस्पिटल्स में, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो जो कटनी एडमिनिस्ट्रेशन था उसने तब भी 200 बेड फैसिलिटी, 200 बेड का सेटअप किया। समझ में आया। तो ऐसा चीज़ हमें करना है कि हम अपने स्ट्रेस में काम कर पाएं। जैसे आप कल डीएम बनोगे तो क्या होगा, एकदम से वहाँ पे राइट्स हो गए, अब आप भी डर गए उसी में, राइट्स में पता चला आपको तो मैनेज करने हैं राइट्स, और आप भी गुस्से में आप आ गए, या फिर आप फियर में आ गए कि राइट्स हो रहे हैं। तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट वे में कैसे आप कर सकते हो वो देखना है। देन वी हैव थर्ड पॉइंट, दैट इज डेंजर ऑफ हाई इंटेलिजेंस लो इंटीग्रिटी। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई पे तो बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि हम इंटीग्रल भी रहें, हम अपने यहाँ भी इंटीग्रिटी भी हमारी उतनी ही अच्छी हो जितनी हमारी इंटेलिजेंस है। जब हमारी इंटेलिजेंस तो अच्छी है जैसे आप, लेकिन आप इंटीग्रिटी आपके अंदर नहीं है, ऑनेस्टी आपके अंदर नहीं है, तो उसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे ओसामा बिन लादेन, you know that he was an engineer expertise, but he did all his expertise for the destruction of the society. We know cyber crimes, जो साइबर क्राइम करते हैं वो डेफिनेटली कौन होते हैं, दे आर द, दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज, ओके ना, they know about cyber security everything, but because of their lack of integrity they are engaged in criminal activities. Then we have white collar crimes. white collar crime में कौन आएगा, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, यस बैंक स्कैम्स। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली a lady of a very famous bank, she was engaged in manipulating
द रिसीप्ट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो वो सारे क्या हो गए, वाइट कॉलर क्राइम्स हो गए. देन वी हैव टैक्स एवेजन्स. फेक जीएसटी रिसिप्ट्स आर क्रिएटेड फॉर द इनपुट आउटपुट क्रेडिट, कि आपका फेक जीएसटी रिसिप्ट्स आप कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया कि आपके पास क्या है, इंटेलिजेंस तो है बट क्या नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी. एक चीज आती है कि जब ना तो इंटेलिजेंस है और ना ही इंटीग्रिटी. जैसे कि एक आईआरएस ऑफिसर थे, ठीक है ना, जिनके केस चल रहा है डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का. डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स मींस कि जितनी आपकी इनकम है और उसके अकॉर्डिंग आपके एसेट नहीं है. जैसे आपकी इनकम है 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, तो 1 साल की कितनी हो गई, 20-25 लाख. 5 साल की नहीं है, 1 सवा करोड़ रुपए. सेविंग्स करके भी 1-1.5 करोड़. आपके पास है 50 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, तो वो क्या हो गया, डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स हो गया. ठीक है. Then we have attitude determines altitude. What do you mean by this? Attitude determines altitude. It means that आपका जैसा एटीट्यूड है, जैसे आपने सोच लिया मुझे आईएएस बनना है, तो आप बन भी जाओगे. ठीक है. जितनी आप लाइफ में राइज करोगे वो डिपेंड करेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है किसी चीज़ को लेके. ठीक है. तो क्यों ऐसा होता है कि एटीट्यूड डिटरमाइंस एल्टीट्यूड? क्योंकि इससे क्या होता है, आप क्या होते हो, गुडविल पे फोकस करते हो, एक ट्रस्ट फैक्टर आपके अंदर होता है. जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, हारमोनियस होते हैं वो लोग. ठीक है ना. जैसे नेल्सन मंडेला, वी ऑल नो अबाउट नेल्सन मंडेला. इन साउथ अफ्रीका ही वॉज फेमस फॉर अबॉलिशन ऑफ अपार्थीड, डेट इज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स. ठीक है ना. इन साउथ अफ्रीका वी नो अन्ना हजारे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट बाय, ठीक है ना. सो वी नो अबाउट आईएसी मूवमेंट बाय अन्ना हजारे. सो दे वर हैविंग अ good attitude, they were having a optimistic attitude. Then those people who have a negative, pessimist means negative attitude, like fueled by ignorance, stubbornness and pride, कि आप ignorant मतलब दूसरों को क्या समझते हैं, छोटा समझते हैं, कि उन्हें कुछ नहीं आता. प्राइड, अपने पे बस फोकस है कि हमें ही सब कुछ आता है. ठीक है. स्टबर्न मतलब जिद्दी हैं, इसी चीज को पकड़ के बैठ गए. तो जैसे कि हिटलर, हिटलर पता है, हिटलर था जर्मनी में, जूस, हॉलोकास्ट ऑफ जूस वाज डन बाय द हिटलर. देन वी हैव एम्पैथिक लीडर्स, जैसे कि गुड मैनेजर्स हो गए. जैसे कि आप एग्जांपल जैसे ले सकते हो, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे एंड इसरो डायरेक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आप एग्जांपल दे सकते हो उसमें. ठीक है. तो जितना भी आपका एम्पैथिक होगा, आप अंडरस्टैंड करोगे अपनी टीम को. कल आप मैनेजर बनोगे, डीएम बनोगे, तो आपको ये नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट टाइप के रहो, आपको एम्पैथी आपके अंदर होनी, कंपैशन होना चाहिए कि हाँ, कि भाई कोई हो सकता है किसी चीज़ में वीक हो, तो ये नहीं कि आप उसे डांटने लग जाओ, आप उसे समझाओ कि वो काम कैसे होगा, उसकी स्ट्रेंथ समझो, उसे बताओ, मोटिवेट करो लोगों को. मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स. तो जो भी इंसान जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है. अगर आप सोचोगे आपको आईएएस बनना है तो आप आईएएस बन जाओगे. नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कि इतना कंपटीशन है, ये है, तो फिर आप भी नहीं बन पाओगे. आप सोचोगे कि यार मेरा तो कैसे होगा, मेरा एक दोस्त था वो आईआईटी में था, उसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, फिर आपका भी नहीं होगा. लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, ठीक है, आप निकाल लोगे. निकालते तो है ही ना बच्चे हर साल, ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं. ठीक है. तो यही है. फिर है रिजल्ट ड्रिवन वर्क कल्चर पे हमें फोकस करना है, जो इसरो करता है. इसरो ने क्या करा कि हमेशा रिजल्ट ड्रिवन वर्क कल्चर पे फोकस किया. ठीक है. फोकस ऑन मिशंस ओवर प्रोसीजर, तो हमने प्रोसीजर से ज़्यादा मिशन पे फोकस किया. रिजेक्शन ऑफ नॉट माई जॉब एटीट्यूड, मतलब ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरा काम नहीं है. जैसे आपको कोई काम दे दिया कंपनी में, प्रोग्रामिंग आपको जावा नहीं आती, आपको पाइथन आती है, आपको जावा पे कुछ कोड दे दिया. अब आप ये नहीं कि यार ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों करूँ. आप सोचो कि जावा में नया कुछ सीखूंगा इससे, अगर मुझे जावा लैंग्वेज आएगी तो हो सकता है मेरा करियर ग्रोथ और बेटर हो, कल मैं उसे अपने रेज्यूमे में इंसर्ट कर सकता हूँ. तो वैसे सोचना है हमेशा, है ना. एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है हर चीज़ को लेके. ये नहीं कि मतलब कि एक्स्ट्रा काम मिल गया तो क्यों मिल गया मुझे, है ना, पैसे तो मुझे मिल नहीं रहे उस चीज़ के, ऐसा नहीं सोचना है. देन वी हैव अ फिलोसफिकल लेंस अबाउट इट. फिलोसफिकल का मतलब दो एक वो होते हैं, फिलोसफीज होती हैं. एक फिलोसफी होती है आपकी यूटिलिटेरियन,
यूटिलिटेरियन फिलोसफी क्या कहती है? वो कहती है कि अगर मैक्सिमम लोगों का अच्छा हो रहा है, ग्रेटेस्ट गुड इन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि अगर मैक्सिमम लोगों का अच्छा हो रहा है तो वो चीज़ सही है, ठीक है। जैसे डैम कंस्ट्रक्शन हुआ कहीं पे, तो उससे क्या होगा? इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, फार्मर्स को क्या मिलेगा? इरिगेशन हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, है ना। तो ये सारा होगा, टूरिज्म भी बूस्ट हो सकता है उस एरिया में। तो वो क्या है, इस पे फोकस करता है, डैम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन जो डिओन्टोलॉजी कहता है वो किस पे फोकस करता है? मीन्स पे। वो सिर्फ एंड पे फोकस नहीं करता कि हमें लास्ट में क्या मिला, कि हमने उस एंड को पाने के लिए हमने क्या स्टेप्स लिए। अगर वो गलत है, चाहे हमारा एंड अच्छा है लेकिन हमने मीन्स सही नहीं अपनाए हैं, तो वो गलत ही होगा। जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्या आती है, बताओ? ये तो मैंने ट्राइबल्स में पढ़ाया था ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है ना भाई। आपने रोड बनानी है, अभी एक आई थी ना जॉली LLB 3 मूवी आई है, उसमें क्या था? उसमें यही था कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी राजस्थान में, बट द प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? प्रॉब्लम हुई थी कि आप लैंड ले रहे हो। अब वो कह रहे थे, जो कंपनी वाले किस चीज़ को फॉलो कर रहे थे? यूटिलिटेरियनिज्म, कि हम तो सबका भला कर रहे हैं, ये रोड बनेगी तो वहाँ पे टूरिज्म बूस्ट होगा, कनेक्टिविटी होगी। लेकिन उन्होंने मीन्स पे फोकस नहीं किया उस मूवी में, राइट मीन्स। क्योंकि क्या हो रहा था, जो लोगों की ज़मीन पे उतना पैसा नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं मिला, तो हमें मीन्स पे भी फोकस करना है, सिर्फ एंड्स पे फोकस नहीं करना है। तो ये कौन कहते थे? गांधी जी कहते थे। कौन कहते थे मीन्स पे फोकस करना है? गांधी जी। इस अप्रोच के कौन है? गांधी जी, ठीक है। गांधी जी का क्या व्यू था? एथिकल मीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टेबल एंड। कि जो गांधी जी कहते थे कि अगर हमें एथिकल मीन्स ज़रूरी है अच्छे एंड्स के लिए, अगर हमारा मीन्स सही नहीं है तो एंड भी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके लिए एक एग्जांपल आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का डाल सकते हो कि वहाँ पे सिविक ड्यूटीज़ है फॉर गार्बेज डिस्पोजल। सिविक ड्यूटीज़ ऑफ गार्बेज डिस्पोजल है, मतलब कि हर लोग अपना एक ड्यूटी मानते हैं कि अगर जो भी गार्बेज है, जो यहाँ पे क्या होता है कि हमने मैनुअल स्केवेंजिंग कर रखी है, हमें अपना डिस्पोजल खुद करना हमें सही नहीं लगता बस, लेकिन हमें चाहिए हमारा घर साफ रहे, देश साफ रहे, लेकिन हम खुद से कितना काम करते हैं उस पर। कभी आपने रोड पे झाड़ू मारी है बाहर जाके? क्योंकि आपको बेइज्जती फील होगी, है ना। आपको लगेगा कि यार ये मेरा काम थोड़ी ना है। इवन अपनी सोसाइटी में भी आप नहीं करोगे, है ना। इवन अपने घर में भी हो सकता है ना करो, कि मेड नहीं आई तो कोई नहीं, मैं क्यों मारूं, है ना। लेकिन वहाँ पे एक सिविक ड्यूटी है उनके अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है? राइट मीन्स पे फोकस करते हैं हम, बस एंड्स पे फोकस है कि हमारा घर साफ लगना चाहिए, देश साफ लगना चाहिए, हम अपने आप से खुद कुछ नहीं करना चाहते। दैट इज द थिंग। अब ये है कि एक चीज़ आती है कि क्या फॉल्सहुड कभी जस्टिफाई कर सकते हैं हम? कि जो फॉल्सहुड है, कि जो हम झूठ बोलते हैं वो सही है गलत है? तो मैक्सिमम तो हमने ये सुना है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑनेस्टी क्या होती है, बेस्ट पॉलिसी होती है। हो सकता है कि कई बार आपकी पॉलिटिकल नेसेसिटी हो, जैसे अब्राहम लिंकन ने लाइंग टू द सेनेट टू पास 13th अमेंडमेंट एक्ट, तो वहाँ पे स्लेवरी थी अमेरिका में, और उस स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहते थे अब्राहम लिंकन, तो उसके लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया था 13th अमेंडमेंट एक्ट। आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है कि ऐसा हुआ था, उसके कारण क्या हुआ, स्लेवरी अबॉलिश हो पाई। देन वी हैव द ह्यूमन राइट्स, जैसे वार अगेंस्ट हिटलर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जस्टिफाइड वायलेंस टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ज्यूज, ओके। तो ये क्या है, ह्यूमन राइट्स, कि यहाँ पे क्या हुआ कि वॉर अगेंस्ट हिटलर, अगर लोगों ने हिटलर के खिलाफ क्यों वॉर किया, ठीक है ना, क्योंकि जूस को हिटलर क्या कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसलिए वॉर हुई। तो वॉर इज ऑल्सो नॉट बैड, अगर आपको कोई गलत आपके साथ कर रहा है। तो कृष्ण जी ने क्या कहा है कि एक पॉइंट के बाद वॉर इज ऑल्सो धर्म, इट इज ऑल्सो ड्यूटी टू डू अ वॉर। ऐसा नहीं है कि वॉर हमेशा गलत ही होता है ना, इन महाभारत। एंड देन सेविंग लाइफ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपको पता है, सिविलियंस हाइडिंग आइडेंटिटी फ्रॉम डेकॉइट्स टू प्रोटेक्ट देयर लाइव्स, कि भाई आपको पता है कि कोई डाकू आ गया और आपके पास है सोना, अब वो कहेगा तुम्हारे पास कितना सोना है, तो आप झूठ बोलोगे उस टाइम पे, बताओगे ना कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो नहीं हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? अपनी जान बचाने के लिए।
तो झूठ भी कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, बोलना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि झूठ को ये मत सोचो कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है। अब है सब्जेक्टिव ऑफ मोरालिटी, कि मोरालिटी आपकी कितनी सब्जेक्टिव है। ठीक है, कि मोरल क्या हमेशा आपका मोरालिटी सेम रहती है, नहीं, वो टाइम के साथ बदलती है। ठीक है, जैसे कास्ट सिस्टम, जो गांधी जी उसे क्या कहते थे पहले, फंक्शनल था। कास्ट सिस्टम क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे इट इज़ फंक्शनल, कास्ट सिस्टम होना चाहिए। बट अम्बेडकर क्या कहते थे, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो गांधी जी और अम्बेडकर का मैं पढ़ाऊंगा जब, तो उसमें है कि गांधी जी और अम्बेडकर का ये हमेशा डिफरेंस रहता था। ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, वेर एज अम्बेडकर वॉज टू एनिलेट द कास्ट सिस्टम। ठीक है, फिर वी हैव जियो पॉलिटिकल नैरेटिव, जैसे कि आपका चाइना जस्टिफाई कर रहा है एग्रेशन एज करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस। ठीक है ना। तो क्या होता है, कई बार मोरालिटी क्या होती है कि आप एग्रेसिव हो, ठीक है ना, किसी के खिलाफ आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे साथ पहले गलत हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इसलिए आप भी गलत काम करना शुरू कर देते हो। तो मोरालिटी क्या होती है कि वो कह रहे हैं हम तो मोरल तो हैं हम, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ है इसलिए हम इमोरल कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द जो पॉलिटिकल नैरेटिव भी है। फिर हाइपोक्रेसी ट्रैप, कि लाइक आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है, मैस्कुरेड कर रहे हो एज यूनिवर्सल इंटरेस्ट। आप ना मतलब कि आपका इंटरेस्ट खुद का किसी चीज में है, लेकिन आप उसे एक यूनिवर्सल इंटरेस्ट के वे में दिखा रहे हो लोगों को। जैसे कि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कास्ट रैलीज को ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर व्हाट, उनका रीजन क्या होता है, वोट बैंक। ठीक है ना, पढ़ा है ना हमने कास्ट को, लेकिन वो बताते क्या है, वो ये थोड़ी कहेंगे हम वोट बैंक के लिए आपको बुला रहे हैं, वो कहेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है, वी वॉन्ट द सोशल जस्टिस फॉर यू पीपल, है ना, ऐसे बोलेंगे वो। तो वो चीज़ क्या हो गई, आपकी हाइपोक्रेसी में आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव ऑफ मोरालिटी। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम जोग्राफी, जैसे अबॉर्शन इज लीगल इन इंडिया, ठीक है ना, अबॉर्शन हो सकता है, मैंने एमटीपी एक्ट पढ़ाया था उस दिन, तो अबॉर्शन इज लीगल इन इंडिया, बट इन आयरलैंड अबॉर्शन वाज इलीगल। तो एक केस हुआ था सविता हलप्पा नावर का, ठीक है ना, सविता हलप्पा नावर का एक केस हुआ था, कहाँ पे हुआ था, आयरलैंड में। शी डाइड बिकॉज ऑफ शी वॉज नॉट एबल टू अबॉर्ट हर चाइल्ड। तो वहाँ पे अबॉर्शन क्या था, इलीगल था, और वो अबॉर्ट नहीं कर पाई, तो वहाँ पे इमोरल माना जाता था इस चीज़ को, अबॉर्शन को। इंडिया में मोरालिटी, तो मोरालिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि सती सिस्टम क्या था, एक टाइम पे मॉरल था, है ना, इंडियन सोसाइटी में, लेकिन आज क्या है, इमोरल हो गया। अनटचेबिलिटी क्या था, एक टाइम पे हो रही थी, पार्ट ऑफ मोरालिटी, आज क्या है, अगेंस्ट में हो। तो टाइम के साथ, ज्योग्राफी के साथ, जियो के साथ, with the hypocrisy and even with the historical context, with different people can see morality different। आपके लिए morality कुछ और हो सकती है, मेरे लिए morality कुछ और हो सकती है। जैसे कास्ट सिस्टम गांधी जी के लिए कुछ और था, अम्बेडकर के लिए कुछ और था। सो डिफरेंट पीपल कैन व्यू मोरालिटी एज डिफरेंट। तो मोरालिटी क्या है, एक इंडिविजुअल चीज है। एथिक्स एंड मोरालिटी में डिफरेंस यही है कि एथिक्स क्या होता है, एक पूरा का पूरा सोसाइटी का नॉर्म्स होते हैं, और जो इंडिविजुअल नॉर्म्स होते हैं वो क्या होता है, मोरालिटी होती है। आपके लिए जो मोरालिटी है वो हो सकता है मेरे लिए ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब आता है कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है ना, इट इज लेस डिटेल्ड एंड इट इज यूनिवर्सल। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है ना, रियलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स। दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज एनफोर्सेबल एंड पीनल, इट इज हाईली डिटेल्ड, ठीक है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, ओके, लाइक फॉर फ्रेंच एंड फॉर इंडियन ब्यूरोक्रेट्स द कोड ऑफ कंडक्ट कैन बी डिफरेंट, ठीक है, एंड इट रेगुलेट्स डे टू डे एक्टिविटीज, ओके। सो aim, universality, scope and nature is different of code of ethics. Basically code of ethics are the set of guidelines that we are just using in a broad manner, like what the society ought to be, कि society क्या होनी चाहिए।
whereas code of conduct can be different from different organization. These are the specific rules and detailed rules of do's and don'ts of the organization, कि इस organization में क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं. जैसे कोड ऑफ कंडक्ट में जैसे पुलिस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग हो सकता है. सो कोड ऑफ कंडक्ट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर वन स्पेशलाइजेशन, ठीक है. कोड ऑफ एथिक्स, हाँ, कोड ऑफ एथिक्स कैन बी लाइक, यू कैन से इट इज अ वाइडर प्रिंसिपल लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी. इट कंप्राइजेज ऑफ समथिंग दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर. कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए भी, पुलिस के लिए भी ठीक है, डॉक्टर के लिए भी ठीक है, टीचर्स के लिए भी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए वेरी करती है. इसलिए ये डिटेल्ड में नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा. ये ओवर क्या है, ब्रॉडर व्यू पॉइंट है कि ऐसा चीज़ जैसे ऑनेस्ट सब होने चाहिए, इंटीग्रिटी सब में होनी चाहिए, कंपैशन सब में होना चाहिए, ठीक है. और इसलिए अभी ये एनफोर्सेबल भी नहीं है. एनफोर्सेबल मीन्स कि हमने कोई लॉ नहीं बनाया है, इट इज़ नॉट लीगली इम्प्लीकेबल. रियलाइजेशन इनका गोल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी. कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का मीन्स की अडेरेंस टू द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जो कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, उस पर जो हम फोकस कर रहे हैं, डेट इज द अडेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स. वेयर एज जो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होता है. हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ब्यूरोक्रेट्स का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सिविल सर्विसेज में भी अपना एक ऑल इंडिया सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है, और एक आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट रूल होता है. समझ रहे हो? तो डेट इज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो ये एक डिफरेंस होता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स में. वही जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट उनके अपने हैं कि उसमें क्या होगा कि यू कैन नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट ऑफ मोर देन ₹2000, कि भाई आप किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. यू कैन नॉट टेक टेंडर्स, और आप कोई भी टेंडर अपने किसी रिलेटिव्स का नहीं ले सकते हो, होता है ना टेंडर वगैरह. और क्या हो सकता है कि जैसे कि आप कोई आप यू हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, ठीक है ना, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है आपको. तो वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, समझ रहे हो. वो क्या हो गया, गाइडलाइंस हैं. अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए हैं तो फिर यही चीज़ प्राइवेट सर्वेंट्स के लिए भी हो. प्राइवेट सर्वेंट्स के लिए नहीं होती हैं, वो तो ले सकते हैं गिफ्ट वगैरह, है ना. तो चीज़ें अलग हो जाती हैं. तो कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो वेरी करता है, ठीक है. ठीक है. अब है मास्टर की टू अकाउंटेबिलिटी. आरटीआई क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कि हर किसी को सूचना का अधिकार है, ठीक है ना. ये कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है, 2005 में ही आया था आरटीआई. तो 50 लाख हर साल क्या होते हैं, एप्लीकेशन फाइल्ड होती है. इससे पता चलता है कितना पावरफुल ये एक्ट है, कितने लोग ये फाइल कर रहे हैं. अब क्या एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि कैसे अकाउंटेबल बना रहा है लोगों को, ठीक है ना, गवर्नमेंट को. तो इसमें क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एनहांस करने के लिए, जैसे एक बागेपल्ली कर्नाटका में एनजीओ है, उसने क्या करा था, आरटीआई यूज़ किया था कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ रोड है उस पर क्वेश्चन किया था वर्सेस फंड अलोकेटेड, कि कितना फंड आपने अलोकेट किया उस चीज़ के लिए, फंड कितना अलोकेट हुआ है, और क्वालिटी ऑफ रोड के लिए, ठीक है. फिर एम्पावरमेंट, जैसे मोका डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट्स ने भी आरटीआई यूज़ किया था. किस लिए किया था, टू सिक्योर पेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना. तो पेंशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रेजिडेंट्स ने क्या यूज़ किया था, आरटीआई यूज़ किया था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो सूचना का अधिकार मतलब कि इंफॉर्मेशन का राइट, कि भाई आखिर हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो वो सब पता चला उन लोगों को उस चीज़ के थ्रू. लीगल रिफॉर्म्स, जो भी नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स हैं, आरटीआई से हमें पता चला कि इतने केसेस अभी भी पेंडिंग हैं कोर्ट में. वो भी कैसे पता चला, कि आरटीआई से. तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इंटरवेंशन किया और फटाफट अंडर ट्रायल्स को कंप्लीट किए, जितने भी ट्रायल्स चल रहे थे, ठीक है ना. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी शॉक हो गया कि भाई इतना सारे अंडर ट्रायल्स अभी केसेस हैं पेंडिंग,
तो वो चीज़ कैसे पता चली? RTI से पता चली। ठीक है, क्लियर है? तो अभी 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक रिवाइज करो। ओके।